ارسلان یہاں پہ موجود ہیں. صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے موبائلس کائنڈلی سائلنٹ پہ رکھیں، اور سوال اگر آپ وائٹ بال اسکواڈ سے ریلیٹڈ اور اس ٹور سے ریلیٹڈ کریں گے تو زیادہ کمفرٹیبلی وہ آنسر کر سکیں گے. سب سے پہلے ارسلان، عثمان، پھر آگے دیکھ. ہاں 2 منٹ میں سب سے پہلے جی السلام علیکم سب کو. اور جیسے ابراہیم نے بات کی، شکریہ آپ کا شارٹ نوٹس پہ آنے کے لیے. آپ نے ٹیمز تو اسکواڈ دونوں دیکھ لیے ہوں گے، تو تھوڑا سا میں اس میں اس کا تھوڑی سی ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کروں گا. آپ کا جو پروسیس تھا ہمارا، کہ اوبیسلی جو ہمارا ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے کہ ڈیٹیلز میٹنگز ہوئی ہماری کوچ کے ساتھ اور کیپٹن کے ساتھ، تو کافی ڈسکشن کے بعد یہ جو ہمارے اسکواڈس تھے یہ فائنل کیے گئے ہیں. اب اس کے اندر جو اسکواڈس کے اندر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، پلیئرز نظر آ رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش بیسٹ یہی رہی کہ ہم سارے اپنے ایریاز کور کریں، تاکہ کسی بھی طرح کی ہمیں کنڈیشنز ملتی ہیں وہاں پہ تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ کمبینیشنز کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ آف پلیئرز موجود ہوں. تو وہ ہم نے اپنی بیسٹ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اویلیبل ہمارے بیسٹ پلیئرز تھے سچویشن کے حساب سے، کنڈیشن کے حساب سے، وہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. باقی جہاں تک وائٹ بال کرکٹ کی بات ہے تو کافی بہتر کرکٹ ہماری ٹیم کھیلتی بھی آ رہی ہے وائٹ بال کرکٹ میں، اور جس کی وجہ سے پرفارمنسز آپ کے سامنے ہیں کہ دن بہ دن ان میں اور زیادہ بہتری آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول پلیئرز کا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی لڑکوں نے اسٹیپ اپ کیا ہے، جس کی ریفلیکشن آپ کو آئی سی سی کی رینکنگز میں بھی نظر آتی ہے. اچھا وسیم بھائی، ہم ایشیا کپ کے اسکواڈ کو دیکھیں تو ان کے وکٹ کیپر میں صرف محمد رضوان نظر آ رہے ہیں. تو کیونکہ ایک لمبا ٹورنامنٹ ہے، بھارت کے ساتھ پروبیبلی 3 میچ بھی ہو سکتے ہیں اگر فائنل آ جاتا ہے، تو بیک اپ کے طور پہ کوئی وکٹ کیپر نہیں لیا گیا. اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ شعیب ملک جو ہے ان کا سننے میں آ رہا تھا کہ ایک میگا ٹورنامنٹ ہے تو شاید جو ہے مڈل آرڈر جس طرح سے ایک عرصے سے پرفارم نہیں کر پا رہا، تو شعیب ملک جو ہے وہ ٹیم میں کپتان نے بھی کہہ رکھا تھا کہ پلان کا حصہ ہیں، تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ ایز ایشیا کپ میں کیوں نہیں شامل نہیں کیا گیا؟ اس کے بعد ورلڈ کپ بھی ہے. دیکھیں، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے وکٹ کیپرز والا، تو اوبیسلی جب کووڈ کی ریسٹرکشنز تھیں تو آپ کو بڑے بڑے اسکواڈ بھی نظر آتے تھے، اس میں 17 پلیئرز بھی گئے، سم ٹائم آپ کو 20 پلیئرز نظر آتے تھے. لیکن اوبیسلی اب ہمارے پاس ایک کیپ ہے کہ 15 پلیئرز نے جانا ہے. تو اس پہ ہم نے بڑی لمبی چوڑی اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ ہمیں کس کس چیز کا بیک اپ چاہیے اور کس کس پہ ہم تھوڑا کمپرومائز کر سکتے ہیں. ہم نے اسپنر کا رکھا، بیک اپ رکھا، فاسٹ بالنگ میں بیک اپ رکھے ہیں، اسی طرح مڈل آرڈر کا بیک اپ رکھا ہے. وکٹ کیپر کی جہاں تک بات ہے، اوبیسلی رضوان جس طرح کی کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر کوشچن تو ایز سچ کوئی نہیں ہے. جس سیناریو کی آپ بات کر رہے ہیں تو اب کووڈ ریسٹرکشنز ہے نہیں ہے، یو اے ای کے اندر ایشیا کپ ہے تو اتنی لمبی کوئی یہاں سے فلائٹ بھی نہیں ہے، تو ان کیس اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن بنتی ہے تو ہم کسی بھی ٹائم یہاں سے بیک اپ بھیج سکتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی ہے باقی پلیئرز کی، شعیب ملک کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں، ہمارے لڑکے جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے ان میں سے بیسٹ ایک کمبینیشن اپنا پک کیا ہے کنڈیشنز کے حساب سے اور وہاں کی جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آگے چل کے اگر اس طرح کی سچویشن بنے گی تو اس پہ ہم ری تھنک کر سکیں، لیکن ایٹ دا مومنٹ ہم نے جو بیسٹ اویلیبل ہمارے پاس پلیئرز تھے ہم نے وہ پک کیے. اچھا وسیم، یہ بتائیے گا پلیز کہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے نیدرلینڈ کے لیے، کہا یہ جا رہا تھا کہ ینگسٹرز کو موقع دیا جائے گا. ہم نے فل اسٹرینتھ ٹیم اناؤنس کی ہے نیدرلینڈ کے خلاف بھی. بابر اعظم، رضوان، شاہین، یہ سب پلیئرز وہاں جا رہے ہیں. تو اچھا نہ ہوتا کہ ہم ینگسٹرز کو چانس دے دیتے، کیونکہ ٹیم نیدرلینڈ کی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شان مسعود کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گا کہ ان کی سلیکشن کیوں نہیں کی جا رہی، کیونکہ ابھی ہم نے سلمان علی آغا کو بھی ریٹین کیا ہے دوبارہ سے پرفارمنس کی بیس پہ 2000 جو ڈومیسٹک جو ہے. تو اگر شان مسعود کے بارے میں بھی تھوڑا سا کچھ بتا دیں. دیکھیں، پہلا سوال میں سوری آپ کا پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ ینگسٹرز کے. دیکھیں، ایک تو میں اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو دوں کہ دیکھیے، جب آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں نارملی یہ ٹرم جب یوز ہوتی ہے کہ وہ ینگسٹر کو، نئے پلیئرز کو چانس دینا چاہیے، وہ سناریو آئیڈیلی آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ کی ایک بڑی پکی جس کو کہتے ہیں نا ٹیم ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس پلیئرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اس ٹیم کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس اس اسکواڈ کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا. انفیکٹ اگر ہم آپ میچوں کی ایوریج نکالیں گے تو بڑے کم میچز آپ کو نظر آئیں گے کہ ابھی تک شاید 100 ون ڈے کوئی بھی ہمارا پلیئر ان میں نہیں کھیلا ہوا ہے.
इस तरह T20 में भी, तो इससे यंग साइड इस टीम के अंदर भी सारे आपको यंगस्टर्स नज़र आ जाते हैं। वो स्टेज जब आती है कि आपकी टीम एक इस्टेब्लिश हो, एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं जो सेटल इन हो चुके हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार अब थोड़ा सा रोटेशन पे जाते हैं। तो एट द मोमेंट हमारी ये टीम जो वनडे की है, स्पेशल दोनों में, लेकिन वनडे में आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा खेले हुए लड़के नहीं हैं, ये यंगस्टर्स भी हैं, इनकी एवरेज एज भी निकालेंगे आपको काफ़ी कम नज़र आएगी। दूसरा जो बात कर रहे हैं कि जी नीदरलैंड्स का टूर है तो वहाँ पे नए लड़कों को ट्राई करना चाहिए, तो देखें स्क्वाड के अंदर भी कुछ प्लेयर ऐसे मौजूद हैं जो अभी तक इंटरनेशनल खेले हुए नहीं हैं। तो अगर वहाँ पे जाके इस चीज़ पे सोचा जा सकता है कि वहाँ पे जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं या एक दो और प्लेयर्स हैं जिनका अभी डेब्यू भी नहीं हुआ है, तो उनको मौका मिल सकता है। तो इस चीज़ पे तो वेरी क्लियर कि इस स्क्वाड के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं। और दूसरा सवाल था आपका मिडिल ऑर्डर के बारे में। देखिए शान प्रॉब्लम वही आ रही है कि मैंने पहले भी बात की थी कि ठीक है उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगेन टॉप ऑर्डर में हमारा कंपटीशन इतना है कि वहाँ पे जगह भी फ़िलहाल नहीं बन रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उसका कंपैरिजन आप आगा सलमान के साथ या किसी और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एविडेंस दिए हुए हैं, वो मिडिल ऑर्डर में खेल के उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला दें, इस पर हुई थी डिस्कशन, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस जो है वो अभी इस चीज़ को हमें इजाज़त नहीं दे रहा जी कि हम एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर में लेके आएँ। मे भी आगे डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है, वहाँ पे वो एविडेंस शो करते हैं तो उनके बारे में दोबारा सोचा जा सकता है, लेकिन टॉप ऑर्डर में इस टाइम आपके सामने है परफॉर्मेंस। आप इमाम की भी देख लें, फ़खर की देख लें, अब्दुल्ला जिस तरह आ रहा है, तो आई थिंक उनका पहले हक बनता है। बिलाल और फिर अबू बकर। सर इंजरी के बाद हसन अली को मुसलसल जो है वो मौके दिए गए और उनको मुसलसल टीम का हिस्सा रखा। बाबर आजम भी कहते थे कि हसन अली जो है वो मैच विनिंग प्लेयर है, तो अब वो मैच विनिंग प्लेयर कहाँ गया जब एशिया कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो एकदम से उनको ड्रॉप करके नसीम शाह को रख दिया जाता है जिन्होंने सिर्फ अभी टेस्ट में उनकी अच्छी कारकर्दगी दी है, लेकिन उनको वनडे और T20 का हिस्सा बनाया जाता है। इसकी तरफ देखिए जब किसी प्लेयर को इस तरह टीम में से रेस्ट करवाया जाता है या ड्रॉप किया जाता है, तो वो एक सिंपल डिसीजन ऐसा नहीं होता कि हमने बस जी ठीक है कितने मैच हो गए इसको आराम से साइड पे करने। स्पेशली वो प्लेयर्स जिनकी बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जिताए हुए हैं, तो उनका पूरा एक होमवर्क किया जाता है कि उनको आपने लंबी रन की बात की है तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे फिर आपको देखना होता है कि शायद इस प्लेयर को यहाँ पे एक ब्रेक की ज़रूरत है फॉर हिज ओन बेटरमेंट, टीम के बेटरमेंट के लिए भी, उस प्लेयर के लिए भी। तो सेम थॉट प्रोसेस हमारा हसन अली के साथ भी था कि एक्सटेंडेड उनको रन हमने दी है उसके अंदर, लेकिन एट द मोमेंट हमें लग रहा है कि ही नीड्स अ ब्रेक। अगर उनको ब्रेक मिलेगी तो अपने आप को रीग्रुप करेंगे, रीगैदर करेंगे, तो दोबारा से वो मैच विनर जो आपने क्वालिटीज़ बताई हैं वो तो आपके सामने है और वो पास में उसने शो भी किया हुआ है। एंड वी आर होपफुल कि आगे चल के हमें दोबारा पुराने वाले हसन अली नज़र आएंगे। देखिए नसीम शाह की अगर आप देखते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है बॉलिंग के अंदर, टेस्ट मैचेस में डेफिनेटली आपने देख ली है, डोमेस्टिक में आपने वाइट बॉल में भी देखी होगी कि एक तो एक्सप्रेस पेस तो उसके पास है ही है, तो वी हैव इंक्लूडेड अनदर अटैकिंग ऑप्शन कि वाइट बॉल में आपको पता है कि विकेटें लेने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको इम्पोर्टेंस है, तो उसको हमने देखा है कि उसमें वो एबिलिटी है कि वो बॉल उसका स्विंग भी होता है। अगर हम उसके टेम्परामेंट की या प्रेशर हैंडलिंग की बात करते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में आपको नज़र आ गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके उसने परफॉर्मेंसेज भी दी हुई हैं। तो हसन अली की जगह जब उन्होंने नसीम शाह को रखा है तो उसके अंदर यही थॉट प्रोसेस था कि एक और ऐसा बॉलर हमारे पास जिसके पास पेस भी है, स्विंग भी है, उसकी प्रेशर हैंडलिंग भी अच्छी है। सो वी आर होपिंग कि नसीम शाह जिस तरह रेड बॉल में कामयाब रहा है इसी तरह वाइट बॉल में भी रहेगा। वसीम भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना वो दिखाई देता है कि सेटल नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, हमने इफ्तिखार को 2 डाउन एडजस्ट किया है स्क्वाड के अंदर, तो इफ्तिखार को एक तरफ हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते और एक तरफ हम उसको बेस्ट पॉसिबल 11 का हिस्सा बनाते हैं। एक चीज़ ये बता दीजिएगा, दूसरा ये कि क्या बेहतर ना हो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसको हमने पिछले 4-5 साल में तैयार किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेहतर कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है, फ़हीम अशरफ, उसको हम स्क्वाड के साथ रखते हैं किसी फास्ट बॉलर की जगह पर, कंपेरिजन बनता है? देखें जहाँ तक आपकी एक चीज़ मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको सेपरेट रखना होगा कि उसकी डिफरेंट अपने क्राइटेरिया हैं। ऑब्वियसली जो बात आप कर रहे हैं वो भी उसका हिस्सा है,
لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے وہ لڑکا سلیکٹ نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ جو لڑکا سلیکٹ ہوا سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہے وہ ہمیشہ ہی سلیکٹ ہوگا۔ یہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ کی جو کرنٹ فارم ہے، آپ کی پرفارمنس ہے، بہت سے فیکٹرز اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے آل راؤنڈر والی، تو اوبیسلی اس کے اندر بھی ہم نے پرفارمنس بھی دیکھنی ہے، ٹیم کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھنی ہے۔ جیسے ابھی نسیم شاہ کا میں نے اگر آپ سے ذکر کیا اس لیے کہ اٹیکنگ آپشن ہے کہ وہ میں وکٹ ٹیکنگ آپشن کی طرف ہم گئے ہیں رادر کہ ہم آدھا آدھا دونوں طرف جائیں، لیکن کرنٹ فارم اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہے جتنے بھی پلیئرز کا آپ نے نام لیا ہے۔ حافظ شہباز اینڈ دین حافظ عمران۔ جی بھائی اگر نصیب کو دیکھیں ہم تو خاص طور پر T20 پہلے فہیم اشرف کے بارے سے بات ہوئی، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی اتنا اچھا اسپننگ آل راؤنڈر بھی دکھائی دیتا ہے، وہ کہ نواز پرفارمنس کرتے ہیں لیکن کنٹینیوسلی بیٹنگ پرفارمنس نہیں ہے۔ آج نصیب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج نصیب اور شعیب علی کیا ان کا کیریئر آپ کے خیال میں ختم ہو چکا ہے یا فیوچر میں بہتر ہے؟ کیونکہ آپ کو آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی آج نصیب نہیں ہے، شعیب کو خیر پہلے بھی نہیں سینٹرل کانٹریکٹ آپ کے اس میں بھی نہیں ہے، اور ایک کہا یہ جاتا ہے کہ شاید ایک لائبریری ہے جس کی وجہ سے اماد کو آپ لائک نہیں کرتے ہیں، تو اماد کو ایک میں بھی ڈال کے کی جاتی ہے جب سینٹرل کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ نے کہا جی کہ آپ کو آل راؤنڈر نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر آپ کو شاداب آل راؤنڈر اسپن نظر نہیں آتا تو میرے خیال میں یہ جاتی والی بات آپ کر رہے ہیں کہ نواز اور شاداب کے ہوتے ہوئے اگر آپ کہیں جی ہمارے پاس اسپن آل راؤنڈرز نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اسپن آل راؤنڈر دو موجود ہیں۔ اب اگلا جو آپ کا سوال ہے اس میں دیکھیں ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کتنے آپ کو اس ٹائپ کے پلیز چاہیے، اور اس کے اندر جو بیسٹ آپشنز ہیں ہم ان کی طرف گئے ہیں۔ اگر آپ نواز کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں، آپ شاداب کی دیکھتے ہیں، تو ان پہ تو کوئی کوشچن نہیں کر سکیں گے آپ، کیونکہ یہ ہمارے لیے میچز جتاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایٹ دا مومنٹ یہی بیسٹ دو آل راؤنڈر سے اور دو کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سیم صاحب جو وکٹ کیپر کا سوال اس سے پہلے ہوا ہے، آپ نے ہی ایک مرتبہ سلیکٹ کیا تھا پروفیل نذیر، کیا وہ ایک وکٹ کیپر بیٹر کے آپشن کے طور پر سلیکشن کمیٹی کے کسی بھی طرح کی انٹیمپٹی میں نہیں ہے؟ اس پر ذرا بتائیے گا۔ اور دوسرا کپتان پاکستان بابر اعظم نے یہ کہا کہ فہیم اشرف ان کے بیسٹ پلیئر ہیں، ان کے متبادل کے طور پر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اور فہیم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جب آپ نے وکٹ کیپر کی بات کی ہے تو اوبیسلی پاس میں بہت سے لڑکے اور بھی ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہوں گے، کچھ پلانس کا حصہ رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی پرفارمنس کو بھی فالو کرتے رہیں کہ ان کا کیس تو تبھی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے جب وہ ہر وینیو کے اوپر پرفارمنس دیتے ہیں اپنا کیس، اسپیشلی میں ینگسٹرز کی اگر بات کرتا ہوں تو وہ جب وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے رہیں گے تو ان کا وہ کیس بنتا رہے گا۔ لیکن جہاں پہ چیزوں میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، دوسرا لڑکا زیادہ پرفارم کرے گا تو اوبیسلی وہ اس سے آگے نکل جائے گا۔ تو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا، دیکھیں بیسٹ پلیئر آئی ڈونٹ نو مجھے آپ نے کون سی اسٹیٹمنٹ کی ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے انٹرو میں بھی آپ کو بولا ہے کہ یہ جو ٹیمیں بنتی ہیں اس میں آپ اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ کیپٹن کا شاید کچھ اور ہے یا کوچ کا اوور ہے میرا، اور جو بھی ٹیمیں ہماری بنتی ہیں تینوں کے کنسنسس سے بنتی ہیں۔ اگین میں کہوں گا کہ پلیئر دیکھیں، پلیئر سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، سوٹیبل اس ٹائم پہ ٹیم کے لیے کیا ہے۔ تو جب ان کی بھی پرفارمنس ہوگی، ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوگی، چاہے وہ آپ نے نام لیا ہے یا کسی اور پلیئر کی، جب ضرورت ہوگی ان کو شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن آن دا سیم ٹائم میرا میسج یہی ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ جہاں پہ بھی آپ کو موقع مل رہا ہے آپ پرفارم کرتے رہیں، آپ کا کیس بلڈ ہوتا رہے گا۔ یشل اینڈ دین عباس رضا۔ وسیم بھائی، انڈیا نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جو ہے اپنی نئی ٹیم کھلائی ہے، اور اگر آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ نے بھی اسکاٹ لینڈ کے خلاف جو ہے اپنی تقریباً نئی ٹیم کھلائی ہے۔ کیا پاکستان فیوچر میں چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ اس طرح کا چانس لے گا کہ جس میں 70% جو ہے وہ نیو پلیئرز ہوں اور 20 یا 30% ایک آدھا سینئر پلیئر ہو؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے ابھی اتنی زیادہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ٹیم نہیں ہے۔ اس ٹیم کے اندر میں نے آپ کو بتایا شاید 20-22 کی ایوریج نکلے گی میچوں کی، تو ینگ ٹیم ہے، نئی ٹیم ہے، تو اس کے اندر ابھی وہ ہمارے پاس لگی نہیں ہے کہ ہمارے جی 9 پلیئرس کے جی بڑے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں، ان کے 100-150 میچز ہو گئے ہیں، ان کو آپ ریسٹ کروائیں گے اور نئے لڑکوں کو کھلاتے ہیں، تو ابھی تو یہ لڑکے جو ان کو پراپر چانسز ملنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ٹور ہے یا بڑا ٹور ہے، تو ابھی ہمارے لیے وہ اتنا کوئی ڈفرینٹ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں پھر میں اس پہ کہوں گا کہ ہم کوشش کریں گے کہ نیدرلینڈ کے اندر اگر وہاں پہ کچھ طرح کی سچویشنز بنتی ہے تو جو ہماری بینچ اسٹرینتھ ہے ود ان دا اسکواڈ ان کو ٹرائی کیا جائے وہاں پہ۔ باقی جہاں تک ابھی انگلینڈ کی ٹیم بھی گئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیدرلینڈ میں ان کی کون سی ٹیم گئی تھی۔
अच्छा वसीम, मेरा सवाल है हैदर अली के बारे में। जी हैदर अली जो है ये प्रेशर सिचुएशन में माजी में परफॉर्म नहीं करते रहे हैं, तो अब किस वजह से आप इनको वापस लाएं और मिडल आर्डर में हम कितनी तवक्को कर सकते हैं कि ये इस तरह काम दे सकते हैं मिडल आर्डर को? और ख़ास तौर पे एक ये भी पॉइंट है कि अगर ये लोग ये एशिया कप में इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो उसके बाद होम सीरीज़ आ रही है, तो उसमें हम कुछ नए टेस्ट करेंगे अगर इनमें से कोई प्लेयर्स ड्रॉप उठे? हाँ देखें, इट्स टू अर्ली टू से कि आगे के हमने इसके बाद के ओबीसी जब परफॉर्मेंसेज हमारे सामने आएंगी फिर चीज़ों को रीअसेस किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें कि हमारी जो सक्सेस रही है उसमें एक बड़ा एक तलब जो है वो कंसिस्टेंसी का रहा है कि प्लेयर्स को प्रॉपर मौके मिल रहे हैं। हैदर अली की जहाँ तक आपने बात की है, आप उनके आखिरी 3 मैचों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आप रेज़ कर रहे हैं तो उसके आपको अपोजिट चीज़ नज़र आएगी। बाकी ये कि जितने भी प्लेयर्स हैं सारे टैलेंटेड हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने हमें मैचेस जिताए हुए हैं। वाइट बॉल में स्पेशली T20 में ऑब्वियसली आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि स्पेशली अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो वो आपको हर मैच नहीं जिताएंगे, उसमें से कोई एक मैच जिता देगा आपको ज़्यादा। आप दूसरा देखेंगे हमारा टॉप ऑर्डर जो है बड़ा हैवी है वो, और वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। ओपनर्स की बात करें, नंबर 3 की बात करते हैं तो आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है, वो सिचुएशन भी देखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। आसिफ अली मैच विनर हमारा रहा है, मैचेस जिताए हुए हैं। हैदर अली ने भी मैचेस हमें जिताए हुए हैं, तो जितने भी खुशदिल भी आपके सामने हैं इन्होंने मैचेस जिताए हुए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे ये 5 में से 5 मैचेस जिताएंगे हमें, तो वो फिर थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा उस चीज़ से कि इनका रोल एक डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिचुएशन में इनकी आती है। लेकिन जितने भी हमारा ये मिडल ऑर्डर है वी आर वेरी होपफुल कि थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा कंसिस्टेंसी आएगी। और इंशाल्लाह दुबई UAE के अंदर आपको पता है कि सॉर्ट ऑफ हमारा होम ग्राउंड UAE रहा है, तो वी आर होपिंग कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के अंदर रही है हम उन्हीं को रिपीट करें। लास्ट 4 क्वेश्चंस एहतशाम भाई, शेख साहब, रफ़ीक खान एंड शफीक साहब। जी वसीम भाई, ज़ाहिर सी बात है टीम अच्छा खेल रही है तो चीफ सेक्रेटरी भी खुश होता है, कहीं परेशानी नहीं होती। सवाल ये था कि अभी 2 डिफरेंट जो है वो किस चीज़ पे होने जा रही है सीरीज, तो हमारा जो कप्तान है वो कहीं आउट हो जाए तो आधी टीम आउट हो जाती है और बाद में जो मिडल ऑर्डर है और जो बाकी टीमें थी वो डरती होती है। तो ये है कोई कंसर्न आपके बैक ऑफ माइंड में कि इसका एक सोल्यूशन किया जाए? अगर इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर दें तो मैं समझ आ जाएगी मुझे आपका सवाल। मतलब है ये है कि हम यंगस्टर्स लेके आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, हम कहते हैं वी हैव फाउंड जनाब ये तो पता नहीं हमने क्या ढूंढ लिया, और वो हो सकता है अगली सीरीज में नहीं होता। जैसे 2-3 कभी क्वेश्चन हुए तो उसी सिनेरियो में मैंने क्वेश्चन किया था कि बाबर आजम अगर आउट हो जाता है तो हमारी तो टीम बैठ जाती है, लेकिन हम फिर भी हिट एंड ट्राई करते रहते हैं। तो कोई ऐसा है कि फेयर चांस लड़कों को कितना दें तो उसको जज वर्ज टीम में खेल सके? कि ये जो फेयर चांस की आपकी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो उसको आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आई हैं, जैसे हसन अली का भी आपने जिक्र किया है तो उस पर भी काफ़ी जिक्र हो रहा था। लेकिन वो पॉलिसी के एक कि कितने प्लेयर को कितना फेयर चांस, ऑब्वियसली अब उसको काफ़ी चीज़ें उस पर होमवर्क किया जाता है कि बैट्समैन के लिए डिफरेंट है, बॉलर के लिए डिफरेंट है, उसके साथ साथ फिर फॉर्म, फिटनेस, उनके बाकी लेवल्स भी देखे जाते हैं। तो ये तो हमारी एक पॉलिसी है ऑब्वियसली कि जी कितने कौन से प्लेयर को कितने चांसेस देने हैं, कितने मैचेस देने हैं या कितने आपने सीरीज़ देनी है। तो आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगा कोई एक लड़का आया और एकदम से वो गायब हो गया, ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है, अनलेस कि कोई ऐसा कोई एक्सेप्शनल चीज़ भी आ जाए उसमें। अदरवाइज़ हमारी पॉलिसी यही है। जहाँ तक आपने मिडल ऑर्डर की बात की है तो डेफिनेटली कंसर्न तो पास्ट में रहा है, लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो उसमें बेहतरी आपको नज़र आ रही है। तो आपने बात की है जी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ज़ाहिर खुशी तो होती है, लेकिन खुशी होती है, लेकिन साथ साथ हमारा जो काम यही है कि जो उसमें थोड़े से वीकर लिंक्स हैं हमने उनके ऊपर वर्किंग करनी है, उनको हमने कैसे बेहतर करना। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो मतलब आप टीम अच्छा खेली है तो ये नहीं कि अब आराम से हम बैठ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, तो ऑब्वियसली हमने उससे आगे भी देखना है, बड़ी पिक्चर्स देखनी है। जैसे एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, तो एक पूरा ये सीक्वेंस एक चलता है। ये बताइएगा कि जैसे वो नेदरलैंड में पहले खेल रहा है, अगर नेदरलैंड में किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो क्या वो जो T20 स्क्वाड का भी हिस्सा होगा, क्या उसमें तब्दीली का इम्कान मौजूद रहेगा? तब्दीली करेंगे टीम में? एक नंबर 2, वो क्या कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के साथ मैच है, क्या हमारी टीम में इतनी एबिलिटी है कि वो फाइनल तक पहुँचे और फाइनल जीत भी सकती हो? देखिए नीदरलैंड में वनडे मैचेस हैं और एशिया का हमारा T20 है, तो दोनों फॉर्मेट्स को अगर आप
लायदा रखेंगे तो बेहतर होगा। 5 प्लेयर्स आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं स्क्वाड के अंदर कि हॉलैंड से और एशिया कप की टीम में आपको 5 चेंजेस नज़र आएंगे, उसमें 4 लड़के ऐड होंगे, 1 लड़का कम हो जाएगा, तो वो फॉर्मेट तो वो वैसे ही वो डिफरेंट खेलने जाएंगे। जहाँ तक आपने चांसेस की बात की है तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर भी किया था, वर्ल्ड कप से पहले भी, और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आपके सामने है हमारी टीम की, चाहे वो अगेंस्ट इंडिया की या ओवरऑल है, तो आई थिंक आपको वही जवाब मिलेगा जो लास्ट ईयर आपको मिला था। वसीम साहब ये बताइएगा, वसीम साहब चीफ सेलेक्टर के तौर पर आपने जो बॉलिंग अटैक है आपका, क्या आप समझते हैं कि ऑफ ब्रेक बॉलर जो है उसकी स्पेशलिस्ट बॉलर की कमी है? और बीइंग अ चीफ सेलेक्टर वंस यू हैव बीन लुकिंग अराउंड क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो आपके रडार पे कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर है जो जिस तरह से जो है वो आपके पास एक्टर्स हैं? डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं और मैं ओपनली उनको एडमिट भी कर चुका हूँ कि हमें स्पिनर्स का फुकदान है। अगर हम बाकी जहाँ तक वर्ल्ड क्लास पे नज़र रखने की बात की है तो वो खेलेगा तो वर्ल्ड क्लास बनेगा, पहले तो हमने इसको डोमेस्टिक से या किसी भी लेवल से में लेना होगा। तो ऑब्वियसली इस पर काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत भी हम इस पर कर रहे हैं, सोच विचार भी हो रही है। अभी डोमेस्टिक हमारा सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है, सिटी से लेके डिवीज़न से, उसके बाद हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हो जाएगी, वाइट बॉल भी शुरू हो जाएगी। तो हमारी काफ़ी नज़रें हैं कि यहाँ से हमें कोई टैलेंट मिले। ऑफ स्पिनर की डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंस है। इसी तरह कोई चाइना मैन, कोई मिस्ट्री बॉलर्स, तो कुछ प्लेयर्स हमारे हैं जो पैथवे से आए हुए हैं जिन पे हमारी नज़रें हैं, जो आपको ऑनर ऑफ हमारे सिस्टम के अंदर, शाहीन्स के अंदर वो नज़र आएंगे प्लेयर्स। तो जब वो रेडी हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए और हम किसी भी ऑफ स्पिनर को खिला दें, वो थोड़ी सी टीम के साथ भी जाती होती है कि वो भी हमने चीज़ें, हमारा असल में काम ही यही है इन चीज़ों को गेज करना कि कौन सा प्लेयर किस टाइम पे रेडी है स्टेप अप करने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। तो 2-3 प्लेयर्स आपको पाकिस्तान शाहीन्स में आपने देखे होंगे, जो लास्ट टूर भी हमारा हुआ था। अभी हमारे शाहीन्स के हमने मैचेस प्लान किए हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उसके अंदर भी आपको इस तरह के कुछ बॉलर्स नज़र आएंगे। तो जब वो पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो हमें एक फेयर आइडिया होगा कि इनकी प्रेशर हैंडलिंग कैसी है, अगेंस्ट द बेटर बैट्समैन ये कैसे खेलते हैं। तो डेफिनेटली ये प्लान्स हैं हमारे आगे चल के। एक तो ये है कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया है कि टीम की सिलेक्शन आपने हमें पहले बता दी, वरना इससे पहले यही होता था कि आप यहीं देते थे, सवाल जवाब नहीं हो पाता ये। दूसरा ये बताइएगा, जब से आप चीफ सेलेक्टर आए हैं, ना कप्तान आपके साथ बैठता है ना कोच साथ। एक तो इसका भी थोड़ी वजाहत कर दीजिए कि वजूहत के हैं, कोई अरीना किसी को चेंज किया है, क्या बात। दूसरा ये बताइएगा कि जैसे हसन अली को आपने आराम दिया है, तो अब अल्लाह आलम ये आप समझते हैं, हसन अली समझता है कि आराम दिया है या वैसे निकाला गया है? आराम देने के लिए ना बाबर आजम भी हैं, और भी खिलाड़ी हैं। नहीं, सवाल मेरा ये है कि वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है, शाहिन अफरीदी साहब जो है वो भी अनफिट हुए, तो क्या बेहतर नहीं था कि जैसे मेरे भाई ने सवाल किया है कि नीदरलैंड के लिए इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा रेस्ट किया जाता और न्यू खिलाड़ियों को शामिल किया जाता, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमने टीम को तैयार करना है। ये मेरा देखिए, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस टीम के अंदर अभी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद नहीं है। शायद बाबर आजम के 89 ODIs, अभी शायद 89 ODIs हुए हैं, तो अभी बाबर के भी उतने मैचेस नहीं हैं, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली वो रिलेटेड है वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, बल्कि जब भी होता है तो मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि शायद आपको लगता है कि यार ये लड़के खेली जा रहे हैं, इनको रेस्ट नहीं करवा रहे हैं, इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसकी मुझे भी रिपोर्ट मिलती है बाकायदा। दे आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग दिस जॉब। वो टीम का जो डॉक्टर है, फिजियो है, ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, उन्होंने बड़ी एक क्लोज आई इस चीज़ के ऊपर रखी हुई है। तो जब भी कोई लड़का ऐसी स्टेज पे आएगा जहाँ पे उसको एक ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ से उसको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे या वो फटीग्ड हो जाएगा, उसको ब्रेक मिलेगी। अगर आप सीक्वेंस देखते हैं, आप नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो गैप्स आ रहे हैं कि अगर 20 दिन का गैप आया है तो वो वर्कलोड आपका मैनेज हो गया वहाँ पे कि आपने 3 महीने क्रिकेट खेली है, 20-25 दिन खेले हैं, या जो भी इनका एक क्राइटेरिया होता है उसके तहत, तो वो रिफ्रेश हो जाते हैं लड़के। और जहाँ तक बात आपने की है जी शाहीन अफरीदी की या बाकी प्लेयर्स की भी, तो इन सारों को वेरी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद करके इनको खिलाया जा रहा है। जहाँ पे वो स्टेज आएगी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहाँ आपको चेंजेस नजर आएंगे टीम के अंदर। बैठे कभी मेरे साथ नहीं बैठे। थैंक यू।
रफ़ीक भाई वो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं खान साहब कि वो कैप्टन और कोच की मशावरत से ही सारा कुछ हुआ है। और मेरे भाई ने सवाल किया था कि उन्होंने बयान दिया है, अगर वो बैठे होते तो सवाल क्या हो जाता कि बयान दिया कि नहीं दिया। चले वो जब वो करेंगे वो भी बातें कर देंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके सवाल नहीं ले सका माजरत, अगेन थैंक यू शॉर्ट नोटिस पे आने का। थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी बाहर आ जाए कब लगाते हैं। लागत